Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter writing and the city life. My dear student, in this topic, in this chapter, we have already discussed about the introduction of the whole chapter. This is very interesting chapter, which I have already informed you when I am discussing the introduction of this chapter. In introductory session, we have read about that the points which is important for your exam. My dear student, if you have remember my previous class, where I have already discussed about that the development, the city, and these type of other specialty of the Mesopotamian society. Dear student, it is a very strange matter with Mesopotamia that it was contemporary of Indus Valley civilization, but the city, the adjustment और the शहर का जो बनावट था, फीचर ऑफ सिटी, that was totally different from that civilization. I mean Indus Valley civilization. Why? Because in Indus Valley civilization, you had seen that the proper sewage system was developed. The town's planning was much better than Mesopotamia. The trade-based economy of the Indus Valley civilization was better than Mesopotamia, and the fortification and the specific quality of the citadels and lower town and the others. If you will minutely observe about both culture and civilization, you can easily find that what I am saying, what I want to inform you. My dear student, it is not what कि कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में दोनों में काफ़ी हमें असमानताएं दिखती हैं, लेकिन समानताएं भी हमें इसके साथ साथ वहाँ पे प्राप्त होती हैं. तो आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में, geographical conditions, Mesopotamian and its geography. My dear student, if you have remember, then little bit information of the geography of the Mesopotamia was given by me in your previous class. The landscape, the climatic speciality, the demography of Mesopotamia. Here, I also inform you that Mesopotamia, that is Greek word, meaning is Mesos and Potamos, it means middle and river. The place which is situated in between two rivers, that is called Mesopotamia, Euphrates and Tigris. So no doubt to say that we have to read about that both rivers and their features, their specialty, their impact on that civilization. Second thing, if that area was developed by two rivers, so without any hesitation we can say that this was the much fertile land, because कि एक पूरा सिल्ट बड़ी मात्रा में अलेवल सॉइल को ये मिट्टियाँ लेके आती होंगी. ये अलेवल सॉइल की जो सिल्ट थी उनको बड़े पैमाने पे ये नदियाँ लाती होंगी बाढ़ के टाइम, और फिर इसे दूर दराज के क्षेत्रों में फैला देती होंगी, और यहाँ से एक पूरा का पूरा प्लेन तैयार होता होगा, एक बड़ा इलाका बनता होगा. हमने इस पे देखा था इस क्षेत्र में कि किस तरीके से जो इराक की भौगोलिक स्थिति थी, इराक में जो कंडीशन थी, वो मेसोपोटामिया के फेवर में थी. हमने आपसे कहा कि जो पूर्वोत्तर का भाग था इराक का, जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन था इराक का, वो हरा भरा था, ऊंचे नीचे जो मैदान, और फिर पूरा लैंड ट्री कवर्ड इलाके में कन्वर्ट हो रहा था. मतलब पूरा एरिया वृक्षों से भरा हुआ था. माउंटेन रेंज दूर तक फैलते हुए चले गए, साथ ही साथ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल की जो सुगंध थी, उससे ये पूरा क्षेत्र सुगंधित हो रहा था. कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, ये मेसोपोटामिया प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों से पूरा भरा हुआ था. लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी चाहिए. प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त थे, लेकिन प्लेन
अपेक्षाकृत कम थे, वहाँ पे माउंटेन रेंज, ऊंची नीची पहाड़ियाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ पे दोनों चीज़ें डेवलप हुई। पास्टोरलिस्ट, दे डेवलप हर्डर्स, दे डेवलप देयर इंडस्ट्री, एंड एज वेल एज वी हैड सीन दैट फार्मर्स, फार्मिंग लैंड वाज डेवलप्ड। वहाँ पे दोनों चीज़ें, वहाँ पे पशुपालन उद्योग का भी विकास हुआ और साथ ही साथ वहाँ पे किसान अपने खेतों को भी तैयार करना शुरू किया। पशुपालन के लिए वहाँ पे एक विशाल स्टेपी ग्रास लैंड थे जिसपे वो लोग अपने जानवरों को चलाते थे। ये इलाका जो पशुपालन के लिए था, ये नॉर्थ में स्थित था, नॉर्थ मेसोपोटामियन पार्ट में, जहाँ पे माउंटेन्स थे, जहाँ पे घास के बड़े मैदान थे जिन्हें स्टेपी घास के मैदान कहते थे। और ये क्षेत्र पशुपालन की तुलना में अन्य व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं था। इट मीन्स द पास्टोरल इंडस्ट्री दैट वाज इन फेवर ऑफ दैट डेमोग्राफिकल कंडीशन, अदर ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट फेवर, आई मीन टू से दैट वाज नॉट, कि वो उतना आसानी से वहाँ डेवलप नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पे पशुपालन का विकास हुआ। वैसे तो मेसोपोटामिया में पशुपालन का विकास, पास्टोरलिस्ट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 7000 BC टू 6000 BC के आसपास, लेकिन इन क्षेत्रों में मेसोपोटामिया का तेजी से हमें विकास दिखाई देता है। यहाँ पे आप जो पूर्व का, ईस्ट का जो पोर्शन है, ईस्ट का पोर्शन जो दजला की सहायक नदी, ईरान, जो आई मीन टू से दैट की जो ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन में आफ्टर द winter rain, sheep and goats feed on grassland, low shrubs and low air to the eat the tributaries of the Tigris। कहता है कि जब वो वन प्रांत है, जो जंगली इलाका है, जो हरे भरे है, वहाँ पे जो हर्डर्स हैं, उनके एनिमल, भेड़, बकरियाँ, यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण कर लेती हैं, खाना के रूप में उसका यूज करती हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ पे ईस्टर्न पोर्शन में जो टिग्रिस रिवर है, जो दजला नदी है, उस नदी के प्रभाव से इरिगेशन फैसिलिटीज पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। ये जो नदी ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा मीडियम भी उपलब्ध कराती है, पथ भी प्रोवाइड कराती है। आई मीन टू से दैट टिग्रिस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड द बेटर फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, रिवर रूट दैट वाज द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। दिस रिवर रूट द कनेक्टेड द माउंटेन रीजन्स एरिया, जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो इस रिवर रूट से जुड़े हुए थे। ये जो दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए जो अच्छा माध्यम थी, वो दक्षिण भाग और जो मेसोपोटामिया का साउदर्न पोर्शन था, तो पूरा का पूरा भाग मरुस्थली था, डिजर्टेड लैंड था। यही बात इस स्थान की जो सबसे पहले जो दक्षिणी भाग थी, जहाँ पे डिजर्टेड एरिया था, यहीं पे दजला और फरात सभ्यता का, यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता का पहले नगर का विकास हुआ, पहली सिटी बनी। सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हमें इन्हीं जो वेस्टर्न प्रांत है, डिजर्टेड लैंड है, यहीं भी दिखाई देता है। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता नहीं थी। नो डाउट टू से दैट दैट वाज द डिजर्टेड लैंड where there is the very shortcomings of the natural resources, so that's why कि ये लोग नगर में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा, ये जमीन नगर के लोगों वाले आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी, because that was a deserted land. But it is very interesting that in that portion, western portion of Mesopotamia, first time we had seen that the city and the writing skills developed.
क्योंकि फरात और दजला नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने जो उपजाऊ और बारीक मिट्टी लाती थी, जो अलुवियल सॉइल लेके आती थी, नॉर्दर्न की पहाड़ियों से निकल कर के यूफ्रेटस डिग्रीज क्या लाती थी, सिल्ट लाती थी, लोडेड सिल्ट, और वो जब प्लेन पे पहुंचती थी उसे दूर तक फैला देती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तथा जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले आया था, तब ये उपजाऊ मिट्टी इस माध्यम से किसानों के खेतों में फैल जाती थी। इफ यू विल सी मैप 2 पेज नंबर 31 पे आप देखेंगे तो आपको वो वहां पे दिखाई देगी। कहते हैं फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में बंटकर बहने लगती है और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई के नारों का काम देती थी। इससे जो आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, मटर, मसूर की खेतों की सिंचाई इन्हीं पानी से की जाती थी, इन्हीं नदियों के जल से आसानी से की जा सकती थी। तो एक तरीके से ये नदियां ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूजफुल थी और दूसरी तरीके से ये इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती थी, और साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग फैसिलिटी का भी अच्छा माध्यम थी। तो यहाँ पे नदियों के उपयोग से एक सभ्यता के विकास में बहुत हेल्प मिल रहा था। अब कहता है कि जो रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, इन सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम with the help of Euphrates and Tigris and their water, Mesopotamia became the richer productive area for the crops and cultivation. फसलों के उत्पादन में ये कंटेम्पररी रोम से भी आगे निकल गया। हालांकि वहाँ फसल उगाने की आवश्यकता वर्षों वर्षा की कुछ कमी रहती थी, फसल उगाते समय बारिश कम होती थी, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। खेती के अलावा भेड़, बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों में काफी ऊंचाई पर स्थित थे। आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट द pastoralist industry. I want to tell you about that what the okay, let us come and try to understand what we are going. I am telling that the industry, both which industry, the pastoralist industry and same the other industry that was farming, because the better condition was available. In Mesopotamia, we had seen that was the great productive area, the various type of crops, land that was available there. Suppose what I am telling you, I want to inform you about that. First, the pastoral industry. Pastoral industries, as well as second, the farming land. फार्मिंग लैंड बोथ डेवलप्ड। आदर कहता है एक तरफ जो पास्टोरल इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो रही थी, किसके कारण? तो कहता है स्टेपीज के कारण, स्टेपीज ग्रासलैंड के कारण। दूसरी तरफ कहता है फार्मिंग क्यों डेवलप हो रही थी? तो कहता है यहां पे दोनों चीज लिख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, natural resource as well as forest, और इधर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, कह रहा दो नदियों के कारण पानी की सुविधा आसानी से उनको मिल रही थी, जिससे वो लोग खेती के काम को विकास कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच पॉइंट्स द पास्टोरल इंडस्ट्री इन मेसोपोटामिया। हम अब पास्टोरल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमने उन चीजों को देखा, हमने उन चीजों के बारे में, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन दैट द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप एंड कल्टिवेशन इन मेसोपोटामिया, बिकॉज क्लियरली आई इन्फॉर्म यू अबाउट दैट मैटर्स
मैंने आपको क्लियर बताया कि नदियों के कारण, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के कारण, दजला और फरात नदियों के कारण ये क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ बन चुका था। ये क्षेत्र फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो चुका था और ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन चूंकि जोग्राफिकल जो उसकी स्पेशलिटी थी मेसोपोटामिया की, माउंटेन रेंज, फॉरेस्ट, स्टेपी ग्रासलैंड, दे वर प्रमोट हर्डर्स, सो वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स विच वाज व्हाट, कि ये सब पाले गए वहां के लोगों के द्वारा। और बिकॉज ऑफ दैट द पास्ट ऑफ इंडस्ट्री डेवलप एंड वेरी ह्यूज अमाउंट। सिमिलर वी हैव सीन that even the Mesopotamian regions that was not well developed for farming land, but we have seen that Mesopotamia, the northern portion, the southern portion, eastern portion, they were changed gradually their areas in the farming land। और इसीलिए क्या हुआ, रोम जैसे कंटेम्प्रेरी जो सभ्यताएं थी उनसे ज़्यादा की संख्या में ये क्या हो रहे थे, उपज का उत्पादन कर रहे थे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग। सपोज आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज entered the deserted, its water flows out into small channels. These channels flood their bank and in the past functioned as the irrigation canals. Water could be let into the field of wheat, barley, pea or lentils when necessary of all ancient systems. That of the Roman Empire, it was the agriculture of the southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did have sufficient rainfall to grow crops. Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppes, the northeastern plains, the mountain slopes produced meat, milk, wool and date. I mean to say that wool and abundance. Further, fish was available in the river and date palm gave fruits in summer. Let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity. We shall discuss other factors by and by, but first let us be clear about city life. Dear student, आप इन चीजों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करिए। एक तरफ हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलप था, दूसरी तरफ हमने देखा कि पशुपालन का विकास अच्छा हुआ। अब दोनों के बीच म्यूचुअल बॉन्डिंग थी। म्यूचुअल बॉन्डिंग की जो जरूरत की चीजें होती थी, किसान उनको पशुपालकों से ले लेता था और जो पशुपालकों को जरूरत होती थी ग्रेन्स की, वो किसानों से प्राप्त कर लेता था। तो कहता है कि इस तरीके से खेती के अलावा जो भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों और पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो प्लेन्स थे और पहाड़ों के ढालों पे पाली जाती थी, ये उपजाऊ स्थान जो बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पे स्थित थे, ये माउंटेन जहां पे ये पशुपालन डेवलप था, तो एक तरफ तो फार्मिंग हो रही थी, दूसरी तरफ पशुपालन हो रहा था ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो कहता है खेती के अलावा जो भेड़ और बकरियां स्टेपी घास के मैदानों में पाली जाती थी, ये पूर्वोत्तर के पहाड़ी मैदान के ढालों पर, जिनमें भारी मात्रा से उन लोगों से, पशुपालकों से भारी मात्रा से क्या मिलता था, मीट, वूल, ऊन, साथ ही साथ दूध, पनीर और इस तरह की तमाम सारी वस्तुएं। इसके अलावा नदियों से पर्याप्त मछलियां मिल जाती थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस से। इनके किनारों पे उगे जो पाम के वृक्ष थे, डेट्स के वृक्ष थे, वहां से डेट के फल मतलब खजूर मिल जाते थे। जो ये खजूर के पेड़ वहां पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे खजूर का फल उनको मिल जाता था। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि केवल जो शहरों का विकास
केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पे हुआ। मेसोपोटामिया में जो शहर बने उनके पीछे ये जो विलेज की जो प्रॉस्पेरिटी थी वही मेन रीजन था। हमें ये सिर्फ ये समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वे वी नेवर व्हाट कि हमें कभी नहीं समझना चाहिए इसको कि सिर्फ और सिर्फ गांवों के कारण ही मेसोपोटामिया के नगरों का विकास हुआ। केवल पशुपालकों, केवल इन जो फार्मर से इनकी मदद से ही मेसोपोटामिया के जैसे शहरों का विकास हुआ। यहां पे आपको यह समझना है कि मेसोपोटामिया के शहरों के विकास के अन्य कारकों के विषय में हम इस चैप्टर में धीरे धीरे बारी बारी से चर्चा करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। On the basis of that, I want to inform you about that the specific quality of the Mesopotamia. I told you that you never feel that the prosperity of the village that was the main reason in the development of the Mesopotamian city. मेसोपोटामिया के शहरों के विकास में केवल और केवल सिर्फ गांव या जो गांव की स्पेशलिटी थी सिर्फ वही कारण नहीं थे। इनके अलावा कारण में और भी सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट थे शहरों के विकास के लिए, कौन कौन सी चीज़ें थी, हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे तो वो है क्या टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। द सिग्निफिकेंस ऑफ the significance of urbanism. Okay, my dear student, this is our next topic. In this topic we will try to understand about that the Mesopotamian city and their specific quality. शहर कैसे बने, शहरों का विकास कैसे हुआ। कहता है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण हमें ब्रोंज यानी 3000 BC में शुरू हो गया। जो सिटी बनी, सिटी कब बनी 3000 BC के आसपास। कौन सा काल था ये, कहता है ब्रोंज एज था। ब्रोंज एज के समय इन शहरों का विकास हुआ। कहता है कि ब्रोंज का मतलब क्या हुआ, कहता है कांसा और तांबा। ब्रोंज में दो मेटल है, एक कॉपर है और एक टीन है। इन दोनों के मिलने से कांसा बनता है। कांसा कॉपर की तुलना में अधिक लचीला होता है। तो कहता है कि कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी बढ़ई का सही काम करने के लिए, कारपेंटरों को सही काम करने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए, पत्थर की मुद्राएं उकरने, फर्नीचरों में जड़ने, सीपियों को काटने आदि कामों के लिए धातु औजारों की जरूरत पड़ती थी। और ये सारी चीजें बाहर के क्षेत्रों से मंगाई जाती रही होंगी। व्हाट आई एम टेलिंग, कहता है कि ये जो ब्रोंज एज है ये कॉपर है। तो ये कॉपर मेसोपोटामिया में पर्याप्त नहीं उपलब्ध थी। इट वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम अदर रीजन्स। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट ओनली द पास्टोरलिस्ट and herders, not only the farmers and peasant, they were responsible to develop the city of the Mesopotamia. They were not responsible. उनके साथ साथ along with the other occupations, the artisans, the import, trade and transportations, the urban culture, that was the important to develop the Mesopotamian city.
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। आप इन चीजों को समझिए कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास कैसे हुआ होगा, मेसोपोटामिया शहर कैसे बनी होगी। तो अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, आई होप इफ यू विल minutely observe about that the how can the city develop in Mesopotamia, what was the process to emerge the new city, first city in Mesopotamia. So you have to understand the regions. No doubt the village prosperity play important role, no doubt the herders and their goods provide them the valuable facility for the Mesopotamian people, but it does never mean that only both region Mesopotamian city developed. तो इनके पीछे के जो कारण थे, अगर आप शहरों के विकास की बात करें तो सिटी कैसे डेवलप होती है, तो अगर इन चीजों को देखें आप तो आपको कुछ और बातों पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट, अगर सपोज सिटी को बनने के लिए क्या चाहिए, सिटी को बनने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या, तो मैं जरा इसे मिटाऊंगा, आप इन चीजों को समझिए कि सिटी कैसे बनती है, सिटी के डेवलपमेंट में क्या क्या रीजंस होने चाहिए। तो अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आप इस चार्ट को देखिए और आप समझ जाएंगे कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इमरजेंस ऑफ द सिटी। सिटी का विकास कैसे होता है? सिटी के विकास के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एग्रीकल्चर। तो अगर देखें एग्रीकल्चर, शहरों के विकास का क्रम, फर्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा और ये सरप्लस प्रोडक्शन एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, एक वर्ग को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा होगा और वो था आर्टिसियन। आर्टिसियन इट मीन्स वो वर्ग जो शिल्पी था। आर्टिसियन इट मीन्स एक ऐसा वर्ग जो उत्पादन कर रहा था, खेती नहीं कर रहा था। He was not involved himself in farming. He was involved himself in producing goods. They provide their what? Their work, their labor in factories, in the production of goods. So that's why without fulfill their needs, required, I mean to say necessary needs, that was the food, whenever it will not provide easily, how can it possible that artisans involve himself in that? I mean to say that producing goods, they working in factories. So surplus production is a very important thing in the emergence of the city first. Second, artisans. When artisans work in factory, they produce huge amount of the goods. What develop? The towns are marketing hub, marketing center. मार्केटिंग सेंटर, इससे शहरों का विकास होगा, मार्केटिंग सेंटर बने होंगे। और जब मार्केटिंग सेंटर बने होंगे, क्या करने के लिए? इन चीजों को खरीदने के लिए आए होंगे। तो यहां पे ये मार्केटिंग सेंटर, तो मार्केटिंग सेंटर के जैसे ही कन्वर्ट हुआ होगा, यहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स आए होंगे और ट्रेडर्स आने के बाद यहां पे अपने गुडाउन्स, यहां पे अपने हाउसेस, और ट्रेडर्स के फैसिलिटीज के लिए टाउन ने क्या विकसित किया होगा? रोड, कुछ रूल्स, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, और रोड, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम फैसिलिटीज
Some facilities it means fooding and lodging facilities. Some facilities means their security. Some facility it means the facility will provide their needs easily available in the particular area. तो शहरों का विकास इस क्रम में हुआ होगा और जब ये डेवलप हुए होंगे बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में, तो यहीं से ये सेंटर इकोनॉमी सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो गए होंगे, मंडियाँ बन गई होंगी, बड़े बड़े मार्केट्स बन गए होंगे, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स डेवलप हुए होंगे। तो यहाँ से सगरों का जो सिटी डेवलप हुई वो इसी से डेवलप हुई होगी। तो जो हमारा टॉपिक है, अगर आपने टॉपिक जो हमने कहा व्हाट टॉपिक था हमारा, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स थे शहरों के विकास के लिए। वी विल डिस्कस दिस, हम वहाँ पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।